Everyone on your cameras. Everyone please on your cameras. Some student here did not on your cameras, so please on your cameras. Dev Prajapati, Nishank Billore, Siddhu Upadhyay, Tejas Chauhan. Please on your cameras. Everyone please on your cameras. On your cameras. Now today we are going to start the first exercise of the chapter number first. You can look at the screen here. The solution of exercise of chapter number first. So we have completed chapter number first today. We have to start exercise of chapter number first. I think you all solved this exercise at your level. At your basis, how much you learn from this chapter. So without wasting our time, we are going to start the chapters exercise number first. What was the first chapter? आपका first chapter क्या था बेटा? Do you know what was the name of the chapter number first? Okay. देखिए करना क्या है, आपको बनाना है a fair copy साइंस के लिए. You have to make and complete your fair copy for the science subject, and in this copy you have to note this all the exercises whatever I am explaining here. After the class I will send the PDF of this exercise in your groups, in your WhatsApp groups. So from there you have to complete your fair copy. आपकी fair copy वहीं से कंप्लीट करनी रहेगी. क्लास के बाद ये जो आपको पेज दिख रहा है, ये पेज का PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा, और ये पेज का PDF सेंड कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर सेंड कर दूंगा. और सिस्टमेटिक ऐसा का ही ऐसा आपको आपकी फेयर कॉपी कंप्लीट करनी होगी. फेयर कॉपी, ड्यूरेशन ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द फेयर कॉपी, यू कैन यूज 2 कलर ऑफ द पेन्स. फर्स्ट वन इज अ ब्लू, सेकंड वन इज अ ब्लैक. First one is a blue color, second one is a black color. You will write all the questions by the blue colors, black color. This is the question. This is the question you have to write in the black color. Point 1, plant that grow in the water called. ये ब्लैक कलर और ये जो एक्वेटिक लिखा है ये ब्लू कलर से, ये आपका ऑप्शंस जो लिखे हैं ये ब्लू कलर में लिखना है ना. तो ऐसे आपको सिस्टमेटिक, काफी सुंदर, वैसे काफी सुंदर तरीके से आपको कॉपी कंप्लीट करना है जो यहाँ पे बताया जा रहा है. ये तो फिलिंग द ब्लैंक्स है, देन आपके ये ट्रू फॉल्स, देन मैच द कॉलम्स एंड देन क्वेश्चन आंसर. So you have to complete your copy in a very systematic manner and you have to write all the things very clear and clean. Okay beta, you have to make your handwriting very good. So from till yet I have completed chapter number 1. In between 2 days I got absent of this class, means I absent this class because some problems with me. So from today this class will be the continue. From today no any leave will help in this class, or in future no any leave will be in the class. Class will be continue regular every day. I will take this class, I will start this class from 1 o'clock every day, and I will not make any holiday in this class. So from next further classes whatever will go there, you have not to face any interruption or irregularity in the class. I will continue in the class. Okay beta.
तो आगे से कोई भी जो मैंने अभी 2-3 छुट्टियां मेरे तरफ से हो गई थी, क्लास आपको 2-3 दिन ऑफ हो गई थी, तो आपकी क्लास अब ऑफ नहीं होगी। हाँ, क्लास हमेशा आपकी कंटिन्यू रहेगी। क्या है, बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था जिसके कारण से टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, आपकी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। तो अब ऐसा आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। जो इरेगुलरिटीज हुई, ये इरेगुलरिटीज अब नहीं होंगी, डेली अब आपकी क्लासेस रहेंगी। ठीक है जी, तो इसके लिए आप एकदम सिक्योर रहें कि अब आपकी क्लासेस डेली रहेंगी, एक भी लीव नहीं होगा। और बाय डिफॉल्ट कभी ऐसी कंडीशन आती है कि आपकी क्लासेस के लीव होने वाले हैं या हो रहे हैं, तो मैं आपको बेटा पहले ही मैसेज कर दिया करूंगा। कई बार टेक्निकल इशू के कारण आपकी क्लासेस ऑफ हो जाती हैं, तो वो पहले तो मैसेज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसी टाइम में आपको मैसेज कर दिया करूंगा कि कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है तो क्लासेस होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो इतनी तो बातें हमने कर ली। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज, है ना। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, चैप्टर फर्स्ट में पहले हमने देखा था एडॉप्टेशन क्या होता है, फिर हमने देखा था, हाँ, एडॉप्टेशन क्या होता है, फिर हमने क्या देखा था बेटा, याद है कि भूल गए आप लोग? कोई बताएगा मुझे? हाँ, एक मिनट बेटा, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। एक्वेटिक प्लांट देखा था, और क्या देखा था बेटा? एक्वेटिक प्लांट कितने टाइप के होते हैं? एक्वेटिक प्लांट कितने टाइप के होते हैं? हाँ, हमने देखा था एक्वेटिक प्लांट, फिर देखा था एक्वेटिक प्लांट कितने टाइप के होते हैं, और क्या देखा था बेटा? टेरेस्ट्रियल एनिमल, टेरेस्ट्रियल प्लांट। अच्छा, एक्वेटिक प्लांट कितने टाइप के होते हैं बेटा? ये तो बताया नहीं आपने। फिक्स्ड प्लांट 3 टाइप के। 3 टाइप के। ये कौन कौन से टाइप हैं बेटा? फिक्स्ड प्लांट, अंडरवाटर प्लांट, फ्लोटिंग प्लांट्स। वेरी गुड। अच्छा, और फिर क्या देखा था हमने? हाँ, क्या देखा था बेटा फिर हमने? टेरेस्ट्रियल प्लांट। अच्छा, टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या होते हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? प्रियांशी अकोलकर, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं? मैं लोगों को सुनाई आ रहा हूँ, हैंड्स अप करें। और आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? सब कोई मुझे देख पा रहे हैं? वेरी गुड। प्रियांशी कहाँ गई बेटा? वेरी गुड। दीपेश, हैंड डाउन कर ले बेटा। हाँ, प्रियांशी क्या हुआ, आपने बताया नहीं फिर? आप खुद को अनम्यूट कीजिए। प्रियांशी खुद को अनम्यूट करें बेटा। प्रियांशी खुद को अनम्यूट करें। प्रियांशी अकोलकर, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आप खुद को अनम्यूट कीजिए। बेटा खुद को अनम्यूट कीजिए।
चलिए, तो प्रियांशी ने हमें बताया, यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। एडॉप्टेशन क्या होते हैं, फिर हमने देखा था प्लांट क्या होता है, फिर हमने देखा था एक्वेटिक प्लांट क्या होते हैं, फिर हमने देखा था टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या होते हैं, फिर उसमें हमने देखा था माउंटेन प्लांट क्या होते हैं, फिर हमने देखा था डेजर्ट प्लांट्स क्या होते हैं, है ना, फिर हमने देखा था मार्सी प्लांट्स क्या होते हैं, फिर हमने देखा था मार्सी प्लांट्स देखे थे, फिर हमने देखा था डेंस फॉरेस्ट देखे थे, है ना, फिर इंसेक्टोवायरस प्लांट्स देखे थे और नॉन ग्रीन प्लांट्स देखे थे। इस चैप्टर में हमने इतनी सब चीजें पढ़ी हुई है। तो अब यहां से हमें करना है, आज इसके एक्सरसाइज। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 है टिक करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लांट दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड ब्लैंक प्लांट। अब ये तो मैंने आंसर यहाँ पे फिल कर दिया है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है वो प्लांट जो ये बताया जा रहा है प्लांट दैट ग्रो इन वाटर, वो प्लांट जो वाटर में ग्रो करे, है ना, इज कॉल्ड कहलाता है। वो प्लांट कौन सा प्लांट कहलाता है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है एक्वेटिक प्लांट, सेकेंड ऑप्शन बी है टेरेस्ट्रियल प्लांट, ऑप्शन सी है ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दैम। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन देखते हैं, दैट प्लांट ग्रो इन वाटर, वो प्लांट जो वाटर में ग्रो करता है तो वो क्या होता है? एक्वेटिक प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट तो वो होता है द प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट, है ना। और ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? दैट प्लांट ग्रो इन वाटर इज कॉल्ड द एक्वेटिक प्लांट, है ना। तो इसलिए यहाँ देखिए मैंने आंसर फिल कर दिया हुआ है ना। आपको ये कॉपी में एक क्वेश्चन नोट करना है, फिर यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना है, फिर ये 4 ऑप्शन लिखना है और जो करेक्ट आंसर है उसे यहाँ पे ब्लैक कलर में लिखना है, ठीक है। और ये ब्लू कलर में ये सब लिखना है, ये सभी ऑप्शन चारों ब्लू कलर से लिखना है, ये जो है ये ब्लू कलर से लिखना है, और ये जो फील करेंगे ये ब्लैक कलर से लिखना है, ठीक है प्रियांशी? हाँ, वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर, हाइसिंथ एंड डकवीड आर एग्जांपल ऑफ। अब ये वाटर हाइसिंथ एंड द डकवीड किसके एग्जांपल है ना। तो हमने देखा था चैप्टर में वाटर हाइसिंथ एंड द डकवीड आर एग्जांपल ऑफ, तो किसके एग्जांपल थे? तो हमने देखा था कि ये क्या था कि वाटर के सरफेस पे ऐसा फ्लोट हो रहा था, वाटर के सरफेस पे ऐसा था। तो ये वाटर के सरफेस पे कौन से प्लांट होते हैं? तो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है फ्लोटिंग प्लांट, है ना। तो ये से आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर नेक्स्ट बता रहा है अंडर वाटर प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर ब्लैंक। अब जो अंडर वाटर प्लांट रहते हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वो फिक्स रहते हैं। किससे फिक्स रहते हैं बेटा? किससे फिक्स रहते हैं अंडर वाटर प्लांट? अंडर वाटर प्लांट फिक्स रहते हैं किससे? तो अंडर वाटर प्लांट फिक्स रहते हैं सॉइल में, है ना। जो वाटर के अंदर जो सॉइल है उसमें वो फिक्स रहते हैं। और किससे फिक्स रहते हैं? तो उनके रूट से वो सॉइल में फिक्स रहते हैं। हमने देखा था कि जो इनके अंडर वाटर प्लांट के जो रूट हैं वो सॉइल में जाके फिक्स हो जाते हैं, ठीक है, सॉइल में जाके फिक्स हो जाते हैं। किससे? उनके रूट से। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैंक आर हॉट एंड ड्राई प्लेसेस विद द सैंडी सॉइल, है ना।
बताइए तो वो कौन सा प्लेस होता है जो हॉट भी होता है और ड्राई भी होता है? तो हॉट प्लेसेस जो होती हैं और जो ड्राई भी होता है वो कौन सी प्लेसेस होती हैं बेटा? अंश राजपूत ऑन योर कैमरा, वो कौन सी प्लेसेस होती हैं? दिशा राठौर, नैतिक खरवरिया ऑन योर कैमरास। देवांश मौर्य प्लीज ऑन योर कैमरा, नैतिक खरवरिया प्लीज ऑन योर कैमरा। बेटा आपको कैमरा ऑन करके रखना है, बार बार मुझे बोलना ना पड़े, है ना। ये प्रियांशु आप स्लीपिंग करके क्लास अटेंड कर रहे हैं क्या? आपको स्लीपिंग करना है तो आप घर में आराम से स्लीपिंग कीजिए, कोई जरूरत नहीं आज क्लास अटेंड करने की। आप घर में आराम से स्लीपिंग कर लीजिए, जब नींद खुल जाए, नींद पूरी हो जाए तो फिर हम क्लास अटेंड कर लेंगे बेटा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। ठीक है बेटा, तो प्रियांशु कुशवाहा पहले आप स्लीपिंग कर लो बेटा, है ना। जब जाग जाओ तो आप हमें बोल देना, हम आपको क्लास में अटेंड कर लूंगा। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर ब्लैंक नंबर 4। बोला जा रहा ब्लैंक आर हॉट एंड ड्राई प्लेसेस। तो हॉट और ड्राई प्लेस कौन रहता है? तो डिजर्ट रहता है। देखिए डिजर्ट में ना तो रेन होती है, खूब तेज सनलाइट आता है ना, हैवी सनलाइट आता है। हाँ, वहां पे रेनफॉल भी नहीं होती है, तो रेनफॉल नहीं रहेगा तो वो ड्राई रहेगा, और सन खूब तेज वहां पे निकलता है तो वो हॉट रहेगा, है ना। और वहां पे हमें मालूम है डिजर्ट में ही सैंड होते हैं, है ना, डिजर्ट में ही सैंड होता है ना पूर्वी, डिजर्ट में ही सैंड होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए है डिजर्ट, ऑप्शन बी है प्लांट, ऑप्शन सी है हिल्स, ऑप्शन डी है माउंटेन। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको फिल कर दिया है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डेजर्ट। अब नेक्स्ट हम पे चलते हैं, नेक्स्ट ब्लैंक क्या पूछता है हमसे? ऑल ब्लैंक आर होम टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अब हमने देखा था कि वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स कहाँ मिलते हैं या कहाँ रहते हैं? प्लांट पे मिलते हैं क्या, हिल्स पे मिलते हैं क्या, ग्रासलैंड में मिलते हैं कि डिजर्ट में मिलते हैं? तो देखिए प्लांट पे तो मिल नहीं सकते, सभी एनिमल, बहुत सारे एनिमल प्लांट पे मिल सकते हैं क्या? कई ऐसे एनिमल रहते हैं जो प्लांट पे तो क्लाइम भी नहीं कर पाएंगे, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी हिल्स, ठीक है, हिल्स पे मिल सकते हैं, लेकिन हिल्स पे छोटे एनिमल तो मिल सकते हैं। अब जो एलिफेंट है, एलिफेंट जैसा एनिमल और या जिराफ जैसा एनिमल हिल पे चढ़ पाएगा क्या? वो तो बिग एनिमल है, हैवी भी रहता है, तो वो हिल पे तो चढ़ ही नहीं पाएगा। जबकि छोटे जो एनिमल होते हैं, डियर हुआ, लियोपार्ड हुए, पैंथर हुए, टाइगर हुआ, लॉयन हुआ, ये सभी हिल पे भी चले जाएंगे, लेकिन एलिफेंट, जिराफ, ये सभी हिल पे नहीं जा पाएंगे। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और यहाँ पे बोल रहा है वैरायटी ऑफ द एनिमल्स फाउंड वेयर, तो हिल भी ऑप्शन गलत। ग्रासलैंड, हाँ ग्रासलैंड पे क्या है, स्मॉल एनिमल भी रह पाएंगे, जैसे डियर है, जैब्रा है, और जेब्रा है, डियर है, बफेलोज है ना, फिर एलिफेंट है, जिराफ है, टाइगर है, लॉयन है, पैंथर है, सब कुछ ग्रासलैंड में आपको देखने को मिल पाएंगे। डिजर्ट देखते हैं, डिजर्ट में रह पाएंगे क्या? हाँ रह तो पाएंगे, लेकिन डिजर्ट में तो बहुत ज्यादा हॉट होता है, और हॉट होता है वहां पे वाटर भी नहीं है ना, वहां पे कोई फॉरेस्ट भी नहीं है, तो ये एनिमल रहेंगे कहाँ? ये तो जो इतना वार्म होने के कारण, इतना गर्मी होने के कारण ये तो डाई हो जाएंगे ना प्रियांशी, डाई हो सकते हैं ना, डाई हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा? तो करेक्ट ऑप्शन है ग्रासलैंड, करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा? ग्रासलैंड। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी।
फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द गिवन वर्ड्स, है ना। अब ये देखिए आपको ब्लैंक दिया है और ऊपर कुछ ये देखिए वर्ड्स दिए हैं, इस वर्ड को यूज करके इस ब्लैंक को फिल करना था। तो ये तो मैंने आपको आंसर यहाँ पे फिल कर दिया है, फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। हाँ, आप इसे देख लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है पॉटर हाइसिंथ एंड द डकवीड आर द एग्जांपल ऑफ ब्लैंक प्लांट। अब ये किसके एग्जांपल है? तो अभी तो हमने ऊपर पढ़ा था ये फ्लोटिंग प्लांट्स के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है? फ्लोटिंग प्लांट। फिर बता रहा है ब्लैंक प्लांट ग्रो इन पॉन्ड, रिवर, लेक एंड ओशियन। अच्छा बताइए कौन से प्लांट रिवर में भी ग्रो कर सकता है, पॉन्ड में भी ग्रो कर सकता है, लेक में भी ग्रो कर सकता है और ओशियन में भी ग्रो कर सकता है? वो कौन सा प्लांट होता है? सो दैट प्लांट इज, बोले सब कोई बोलिए प्लीज, एवरीवन रिप्लाई। तो वो प्लांट होते हैं एक्वेटिक प्लांट। हाँ वेरी गुड प्रियांशी, एक्वेटिक प्लांट होते हैं। फिर नेक्स्ट बता रहे हैं सम प्लांट्स हैव एयर स्पेसेस इन देयर ब्लैंक एंड ब्लैंक। अब कुछ प्लांट होते हैं जो चैप्टर में हमने पढ़ा था उसमें एयर स्पेस होता है। कहाँ पे? तो उसके स्टेम्स में भी होता है और उसके लीफ में भी होता है एयर स्पेसेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट बताया जा रहा है ब्लैंक इन ब्लैंक एरिया द सॉइल इज थिक एंड क्ले। तो हमने जब मॉर्सी प्लांट पढ़े थे तो हमने देखा था कि जब एक ही प्लेस पे वाटर गेदर्ड हो जा रहा है, इकट्ठा हो जा रहा है और वहां पे रहता है तो वहां की जो सॉइल होती है स्टिकी हो जाती है और क्लेई हो जाती है ना। मतलब कीचड़ टाइप में बदल जाता है, चिपचिपा हो जाता है, चिपकने लगता है, कीचड़ टाइप में बदल जाता है। हाँ, तो वो बोल रहा है वो प्लेस जहां पे सॉइल जो आपको हो थिकली मिले और क्लेई मिले हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो वो बोल रहा है कि हमसे पूछ रहा है कि इसे क्या बोलते हैं? जहाँ क्लेई सॉइल मिले और थिकली मिले तो इसे क्या बोलते हैं बेटा? तो इसे बोलते हैं मार्सी एरियाज, है ना बेटा, मार्सी एरियाज। लास्ट हमसे पूछा जा रहा है सम प्लांट्स आर नॉन ग्रीन एज दे हैव नो। अच्छा बताइए कुछ प्लांट ना ग्रीन नहीं होते। लास्ट हमने जो हेडिंग पढ़ा था चैप्टर का, आपके पास बुक होगी आप देख सकते हैं, लास्ट जो हमने हेडिंग पढ़ा था चैप्टर का वो हमने पढ़ा था नॉन ग्रीन प्लांट। अब नॉन ग्रीन प्लांट जो हमने पढ़ा था, नॉन ग्रीन प्लांट में हमने ये पढ़ा था कि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है जिस कारण से ग्रीन नहीं होते हैं और ये अपना फूड भी प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो ये फूड प्रिपेयर करने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, है ना। तो ये नॉन ग्रीन होते हैं। किस लिए होते हैं बेटा? व्हाई दे आर नॉन ग्रीन? बिकॉज दे हैव नॉट क्लोरोफिल, है ना। इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है इसलिए नॉन ग्रीन होते हैं। और जिन प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है वो क्या होते हैं बेटा? वो क्या होते हैं? तो जिनके पास क्लोरोफिल होता है वो क्या होते हैं? वो ग्रीन प्लांट होते हैं, है ना। आपको मालूम है ना ग्रीन प्लांट कौन होता है? जिसके पास क्लोरोफिल हो। अंश क्या हुआ बेटा? कोई क्वेश्चन है क्या? अंश को मेरी आवाज आ रही है? अंश राजपूत, अंश मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? अंश मेरी आवाज आ रही है बेटा? अंश मेरी आवाज आ रही है? चलो आप देखिए ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स भी फिनिश हो गया। अब ट्रू एंड फॉल्स फटाफट देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट बोल रहे हैं फ्लोटिंग प्लांट्स आर स्मॉल लाइट एंड स्पॉन्जी। फ्लोटिंग प्लांट, तो फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्मॉल भी होते हैं, लाइट भी होता है, स्पंजी भी होते हैं। जिसलिए क्या होते हैं? वो लाइट वेटेड होते हैं और वाटर पे फ्लोट करते रहते हैं, वाटर में डूबते नहीं है, है ना।
तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड बता रहा है स्टोमेटा आर अब्सेंट इन अंडर वाटर प्लांट। स्टोमेटा अंडर वाटर प्लांट में अब्सेंट रहता है, तो यस ये फॉल्स है। नेक्स्ट बता रहा हाइड्रिला एंड टेप ग्रास आर द एग्जांपल ऑफ अंडर वाटर प्लांट। हाइड्रिला और टेप ग्रास किसके एग्जांपल है? बुक में से देखिए, सर अंडर वाटर प्लांट। हाँ वेरी गुड। हाइड्रिला और टेप ग्रास आर एग्जांपल ऑफ द अंडर वाटर प्लांट, ट्रू। फिर नेक्स्ट है फॉरेस्ट आर थिकली पॉपुलेटेड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। ट्रू। फॉरेस्ट आर deeply populated with the different type of the different kind of the plant। ये ट्रू है ना? ये क्या है बेटा? ये ट्रू है। हाँ ट्रू। ट्रू, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बताया जा रहा है द रूट ऑफ ग्रासेस एंड स्मॉल प्लांट मेक द सॉइल रिच। ट्रू। 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 ट्रू बताया जा रहा है जो रूट होते हैं, the root of grasses and small plant make the soil rich। चलिए बताइए उपाध्याय जी, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। इसके बाद नेक्स्ट नहीं लाओ। अच्छा प्रतिभा की क्लास बस 2 मिनट के लिए ठीक है, तो ये ट्रू होगा। और लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं द डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट इन फ्लूइड कंज्यूम द इंसेक्ट। तो ये भी ट्रू ऑप्शन है। हमने लास्ट देखा था इंसेक्टोवर्स प्लांट्स में कि जो उनके डाइजेस्टिव जूस रहते हैं वो फ्लड जो होता है उसमें कंज्यूम करते हैं, जो इंसेक्ट रहते हैं वो कंज्यूम करके रखते हैं। तो ये भी ऑप्शन ट्रू है ना? अब देखिए मैच द कॉलम पे हम आ जाते हैं। मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम, कॉलम ए है और कॉलम बी है। देखिए एक तरफ लिखे हैं सभी प्लांट और एक तरफ लिखे हैं उसकी क्वालिटी। तो देखिए डेजर्ट प्लांट कैसे होते हैं? ब्रीथिंग रूट होता है कि स्पाइसेस इंस्टेड ऑफ लीव्स होते हैं, स्पिन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स होते हैं, एवरग्रीन प्लांट होते हैं कि होल्ड सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर और कैनिफोरस। तो देखिए जो डिजर्ट प्लांट होते हैं, डिजर्ट प्लांट कैसे होते हैं बेटा? डिजर्ट प्लांट में क्या होते हैं? उनपे लीफ नहीं होते हैं, उसपे कांटे होते हैं, स्पिन्स होते हैं, जिसे थ्रॉन भी आप बोल सकते हैं, है ना? तो डेजर्ट प्लांट का सही करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, स्पाइन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। क्या है? स्पाइन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। चलिए सेकेंड मैनग्रोव्स जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं? मैनग्रोव प्लांट्स कैसे होते हैं बेटा? तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है होल्ड सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर। ये सॉइल पार्टिकल्स को साथ में कनेक्ट करके रखते हैं, इसलिए तो ये क्लेई हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं ना, है ना? कीचड़ कैसा होता है? सभी एक में चिपक के रहता है, मड एक में चिपक के रहता है, इसलिए वो क्लेई स्टिकी रहता है ना? फिर हिली एरिया कैसे रहते हैं? एवरग्रीन रहते हैं, है ना? हमने देखा था कि हिल पे जो फॉरेस्ट रहते हैं मोस्टली एवरग्रीन ही रहते हैं। फिर बैकऑन कौन है? कॉनिफरस है। और ग्रासेस क्या है? ब्रीदिंग रूट्स वाले होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका था मैच द कॉलम, ये आपका था मैच द कॉलम। अब देखिए आज का लेक्चर ना हम यहीं पे ओवर करेंगे। अब आपको क्या करना है? आपको बनाना है फेयर कॉपी, और फेयर कॉपी में क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी आपको अच्छे से राइट करना है और इसे रिवाइज भी करना है। चैप्टर को एक बार फिर से आपको रिवाइज करना है, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे के सभी वीडियोस फिर से देखिएगा। ठीक है बेटा?
और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे जब मिलेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर ई को हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सर हाँ बेटा बोलो। सर आंसर ब्लू पेन से लिखना है। हाँ बेटा, आंसर ब्लू पेन से लिखना है, क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखना है। यस सर। ठीक है। यस सर। और किसी को कुछ पूछना बेटा मुझसे? किसी को मुझसे कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग खुद को अनम्यूट कर लें। आप खुद को अनम्यूट कर पा रहे हैं? हाँ, आप कर लीजिए, खुद को अब अनम्यूट कर लीजिए। हाँ दुर्गेश आप पूछे। दुर्गेश आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। दुर्गेश पूछो बेटा, आप पूछो ना, आपकी आवाज मुझे नहीं। सर हाँ बेटा बोल। सर हमारे साइंस की बुक नहीं मिली सर। दक्ष घनश्याम प्रजापति आप पूछे। पहले तो सब कोई ना अपने स्पीकर का वॉल्यूम कम करके रखें। दक्ष बेटे पूछो। सर साइंस की फेयर कॉपी में राइट करना है। यस, साइंस की फेयर कॉपी में राइट करना है। ये अभी पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, वहां से करना है। दुर्गेश कुमार को पूछिए, आपको क्या पूछना है? वन लाइन में। वन लाइन में। अरे यार चिल्लाइए मत, आपकी आवाज आ ही नहीं रही है तो फिर चिल्ला के मतलब भी क्या? आपके वहां नेटवर्क इशू है। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? अगर पूछना है तो हैंड्स अप करें। किसी को कुछ क्वेश्चन है? हाँ चिन्मय पूछिए बेटा। हाँ चिन्मय पूछिए बेटा। सर हमारे साइंस की बुक नहीं मिलती। साइंस की बुक अब शॉप पे जाइए और वहां से लीजिए। यस सर। हाँ हाँ बेटा, ये अमन कौशल, हाँ क्वेश्चन करें आपका। उनसे पूछ लो कि वहाँ कहीं पूछ लिया जो वहाँ साड़ी को भी मैंने कहा था सुबह ले आऊँगा, शाम तक आ जाना लेना। पूछ ली एक बार कभी आएगी और एक तो नहीं आ कहाँ की साड़ी है? आपको बेटा ये वन लाइन कॉपी में करना है कि फोर लाइन कॉपी में करना है, ये आप पूछ रहे हैं मुझसे। आपको